بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اسلامک اسٹڈیز کی ریکمنڈڈ ریڈنگز ہیں اور اس میں سے یہ جو 36 نمبر پہ بک ہے تہذیب و تمدن اسلامی بائے رشید اختر ندوی، اس کا حصہ دوم کر رہے ہیں ہم، اور اس میں سے آج کرنا ہے اس دور کے موسیقار۔ یہ اموی دور کے بارے میں ہے، یہ اموی دور کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں طویس و ابن مسحج، صاحب معبد ابن سریج، ابن محرز، ابن عائشہ، مالک، بڑے گویے طاؤس اور ابن مسحج اموی دور میں بڑے نامور گویے پیدا ہوئے اور انہوں نے اس فن کو بہت عروج بخشا، لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ عرب میں موسیقی کا آغاز خلافت راشدہ کے اختتام سے پہلے ہو چکا تھا، اور غلامان قریش میں سے دو گویوں طاؤس اور ابن مسحج نے عربوں میں موسیقی سے اچھی خاصی دلچسپی پیدا کر دی تھی۔ یقیناً یہ صحیح ہے کہ حضرت فاروق اعظم کی وفات تک نہ طاؤس کو یہ جرت ہوئی تھی کہ گانے کو پیشہ بنا لے، اور نہ ابن مسحج نے یہ جرت کی تھی۔ البتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ دونوں گویے عام محفلوں میں شریک ہونے لگے تھے۔ خصوصاً طاؤس تو کافی بے باک تھا اور حضرت مغیرہ بن شعبہ جیسے لوگوں کی موجودگی میں دف بجانے اور میٹھی سروں میں گانے لگتا۔ حضرت عثمان کے صاحبزادے حضرت ابان جو عبد الملک کی طرف سے مدینہ کے گورنر بنائے گئے طاؤس کو بہت پسند کرتے۔ صاحب الغانی کہتے ہیں کہ جب ابان عبد الملک کے نائب السلطنت ہو کر مدینہ آئے تو مدینہ کے تمام اشراف نے شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا۔ ان اشراف میں طاؤس بھی تھا۔ اس نے ابان کو دیکھا اور آگے بڑھ کر درخواست کی کہ مجھے اس خوشی میں گانے کی اجازت دی جائے۔ ابان نے اجازت دی اور طاؤس نے گانا گایا اور دف بجائی۔ ڈھولک بجانے میں طاؤس اپنی مثال آپ تھا۔ ڈھولک اس سے پہلے ابھی عرب میں خوب متعارف تھی، باجے بھی بجائے جاتے۔ خیبر کے یہود باجوں سے بہت دلچسپی لیتے تھے، لیکن مدینہ میں باجے کا زیادہ رواج نہ تھا۔ دف البتہ پسند کی جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مناہی نہیں کی تھی۔ طاؤس نے دف کی جگہ کوئی دوسرا ساز استعمال نہیں کیا، اس نے حزج اس ڈھولک پر گایا اور امام کہلایا۔ طاؤس مدینہ کا گویہ تھا اور صاحب علم و فضل گویہ تھا۔ ابن مسحج مکہ کا تھا، اسے گانے کا بے حد شوق تھا۔ اس نے گانے کی خاطر ملک کا سفر کیا، فارس پہنچا، شام گیا، روم کی سیر کی اور ہر جگہ کی موسیقی سیکھی۔ چونکہ بہت ذہین اور طبع تھا، اس لیے جس جگہ بھی گیا وہاں کی موسیقی میں اپنی طرف سے ترمیمیں پیش کی، نئی دھنیں ایجاد کی، اور جب عرب آیا تو وہ بہت بڑا گویہ تھا۔ وہ حجاز کا پہلا مغنی ہے جسے موسیقی پر اتنا عبور حاصل تھا۔ طاؤس نے اس سے پہلے گانا شروع کیا، مگر طاؤس صرف ایک چیز میں مہارت رکھتا اور ابن مسحج موسیقی کے بہت سے شعبوں پر عبور حاصل کر چکا تھا۔ ابن سریج جیسا بڑا صاحب فن مغنی اس کا شاگرد تھا۔ صاحب الغانی کا بیان ہے کہ ابن مسحج جس شخص کا غلام تھا اسی کی ملکیت میں ابن سریج بھی تھا۔ مالک کو ابن مسحج کا گانا بہت پسند تھا، اس نے اسے آزاد کر کے فرمائش کی کہ ابن سریج کو بھی گانا سکھا دو۔ کہا جاتا ہے کہ جب امیر معاویہ نے کعبہ کی تعمیر کی تو فارسی معمار آئے، وہ تعمیر کے وقت گاتے، ابن مسحج نے انہیں گاتے سنا تو اسے گانے کا شوق پیدا ہوا اور پھر اس نے ان کی لے میں عربی شعر گائے۔ اس لیے وہ پہلا شخص ہے جس نے فارسی موسیقی کو عربی میں منتقل کیا یا جس نے فارسی لے سے عربوں کو متعارف کرایا۔ صاحب الغانی فرماتے ہیں کہ ابن مسحج نے جب مکہ میں خوب شہرت پائی اور قریشی نوجوان عمرہ اسے خوب نوازنے لگے تو کسی نے مروان بن حکم کو اس چیز سے مطلع کر دیا۔ مروان کی طرف سے حکم آیا کہ ابن مسحج سے اس کی ساری دولت چھین دی جائے۔ دولت چھینی تو ابن مسحج مجبور ہو کر شام آیا اور ایک ایسے شخص کے ہاں مہمان ہوا جو عبد الملک کا ہمسایہ اور ندیم خاص تھا۔ جب رات ہوئی تو ابن مسحج نے سر باہر نکال کر گانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز میں جادو کی سی تاثیر تھی۔ عبد الملک نے آواز سنی تو گانے والے کے متعلق استفسار کیا، اسے پاس بلا کر اس کا گانا سنا اور بہت محفوظ ہوا۔ اس کا نام پتہ پوچھا اور جب معلوم ہوا کہ یہ وہی ابن مسحج ہے جس کے مال کی ضبطی کا فرمان جاری ہوا تھا تو عبد الملک ہنسا، کہنے لگا تمہارے مال کی ضبطی کا عذر معقول تھا، مگر تم بہت بڑے صاحب فن ہو اور یہی وجہ ہے کہ قریش کے نوجوان تمہارے گرد جمع رہتے ہیں اور تمہیں خوب دیتے ہیں۔ عبد الملک نے بھی اسے خوب دیا اور فرمان جاری کیا کہ اس کا چھینا ہوا مال اسے واپس کر دیا جائے اور آئندہ اسے کوئی کچھ نہ کہے۔ صاحب خاصر بہت بڑا مغنی نہ تھا، مگر اس دور کے بڑے مغنی معبد ابن عائشہ، جمیلہ، سلامہ، حبابہ اور عزت المیلہ اس کے شاگرد تھے۔ صاحب مدینہ کا پہلا مغنی ہے جس نے مدینہ میں اس فن کا طاؤس کے بعد صحیح تعارف کرایا۔ صاحب الغانی کہتے ہیں کہ صاحب عبداللہ بن جعفر کا آزاد کردہ غلام تھا، مدینہ میں رہتا اور کھانے کی چیزیں فروخت کرتا۔ صاحب پہلا شخص ہے جس نے مدینہ میں عود تخلیق کیا اور پھر اس پر میٹھے اور سریلے نغمے گائے۔
ابن خردازبہ کی روایت ہے کہ مدینہ میں سب سے پہلے گانے والی وہ چھوکریاں تھیں جنہیں عبداللہ بن عامر مدینہ لایا تھا۔ یہ چھوکریاں مدینہ میں گاتی اور غالباً رقص بھی کرتی۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ برسر اقتدار آ چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا زمانہ بیت چکا تھا۔ کوئی دوسرے لفظوں میں مدینہ میں موسیقی کا آغاز پہلی صدی ہجری کے نصف آخر یعنی 50 ہجری سے ہوا۔ ابن خردازبہ کی روایت کے مطابق ایک فارسی مولوی بنشریت مدینہ آیا، غالباً حضرت عبداللہ بن جعفر کے ہاں قیام کیا۔ یہ پہلا معلم تھا موسیقی کا۔ اس کا گانا اور موسیقی حضرت عبداللہ بن جعفر کو خوب بھائی، اور جب وہ مدینہ سے لوٹ گیا تو عبداللہ بن جعفر نے ایک خلا سا محسوس کیا۔ اس خلا کو ذہین صاحب نے پر کر دیا اور اچانک ان سے کہا کہ ہم آپ کے لیے خود بھی بنائیں گے اور میٹھی سریں بھی ایجاد کریں گے، عود بھی بنائیں گے اور میٹھی سریں بھی ایجاد کریں گے۔ اس نے جو کہا تھا پورا کیا، ایک خوبصورت عود بھی تخلیق کیا اور عربی زبان میں پہلی بار میٹھی سریں ایجاد کی۔ یہ پہلی عربی صوت تھی جسے صاحب نے تخلیق کیا۔ محبت نے اسی صوت کو پیش نظر رکھ کر اور صوتیں ایجاد کی۔ صاحب چونکہ شروع میں مدینہ کا تنہا مغنی تھا، اس لیے اس کی بڑی قدر تھی۔ عبداللہ بن جعفر مدینہ کے سب سے بڑے آدمی تھے، سید ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد فیاض، مالدار اور صاحب ذوق تھے۔ صاحب ان کا مولا تھا اور انہی کے سہارے جی رہا تھا۔ انہی کے لیے اس نے عود ایجاد کیا، انہی کے لیے نئی راگنی تخلیق کی اور انہی کے سامنے گاتا۔ وہ انہی کے سامنے گاتا۔ البتہ وہ شام تشریف لے گئے تو یہ بھی ان کے رکاب میں شام پہنچا۔ وہاں امیر معاویہ نے ان کا راگ سنا اور بے حد پسند کیا۔ وہاں یزید نے بھی صاحب کی سرپرستی کی۔ اس کے گانے میں اس قدر تاثیر تھی، اس کی آواز اس درجہ شیریں تھی کہ جب وہ ایک رات یزید کی محفل میں گا رہا تھا، امیر معاویہ بڑی توجہ سے اس کا گانا سنتے رہے اور سویرے یزید کو بلا کر اس کے گانے کی تعریف کی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر جب واپس مدینہ آئے تو صاحب بھی آیا اور پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کی زندگی کے آخری ایام تک مدینہ سے الگ نہیں ہوا۔ صاحب الغنی کا بیان ہے کہ ایک بار جناب امیر معاویہ مدینہ آئے اور دارالحکومت میں پہنچ کر خادم حضوری سے کہا کہ منادی کرے کہ ہم آ گئے ہیں، لوگ ہم سے ملنے آئے۔ خادم حضوری تھوڑی دیر کے بعد واپس ہوا کہ شہر خالی ہے، سارے لوگ عبداللہ بن جعفر کے ہاں جمع ہیں۔ جناب امیر معاویہ نے سواری منگوائی، اس پر چڑھے اور عبداللہ بن جعفر کے ہاں پہنچے۔ وہاں سب کے سب جمع تھے اور صاحب گا رہا تھا۔ امیر معاویہ بھی مجمع میں پہنچ گئے اور عبداللہ بن جعفر کے پہلو میں بیٹھ کر صاحب کا گانا سنا اور خوب پسند کیا۔ افسوس یہ صاحب فن اور مدینہ کا پہلا مغنی فتنہ ہرہ میں شامیوں کی بد اخلاقی کی نظر ہوا۔ فتنہ ہرہ اسلامی تاریخ ایک بہت تاریخ باب ہے۔ شامی فوج نے مدینہ والوں کی بغاوت کو دبانے کے لیے مدینہ کا محاصرہ کیا تھا اور پھر مدینہ کی گلیاں خون سے بھر گئی تھی۔ جوانوں، بوڑھوں اور بچوں کی لاشیں ہر طرف تڑپ رہی تھیں۔ شامی قاتل تھے اور مدینہ کے رہنے والے مقتول۔ انہیں گرفتاران بلا میں بیچارہ صاحب بھی تھا۔ جب شامی فوج نے اسے پکڑا، اس نے اس کے سرداروں سے کہا، بھائی ہم تو گویے ہیں، ہم نے تو امیر المومنین کے دربار میں بھی گایا ہے۔ ستم ظریف شامیوں نے اس سے کہا، بڑی اچھی بات ہے، پھر تم ہمیں بھی گا کر سناؤ۔ اس دن اس نے جبرن موت کے ڈر سے اس فوج کو گانا سنایا اور ابھی وہ گا رہا تھا کہ ایک بدمست شامی نے آگے بڑھ کر اس کی گردن کاٹ لی۔ صاحب کی موت اس بات کا ثبوت تھی کہ واقعہ ہرہ میں حد سے زیادہ زیادتی کے مظاہرے کیے گئے۔ یہی بات یزید نے مقتولین کے نام سن کر کہی۔ محبت صاحب کو مر گیا مگر اس کے شاگرد ابھی زندہ تھے۔ ان شاگردوں میں محبت بھی تھا۔ اسحاق کہتے ہیں کہ محبت کی آواز تمام گویوں سے زیادہ اچھی اور شیریں تھی، وہ سب لوگوں سے زیادہ ماہر گویہ اور صاحب فن تھا۔ اس کا اخلاق بھی بہت اچھا تھا، وہ گویوں کا سرتاج و امام تھا۔ محبت ابھی بچہ ہی تھا جب لوگوں نے اس کے کمالات کی گواہی دی تھی اور پیشن گوئی کی تھی کہ وہ اپنے وقت کا امام فن ہوگا۔ محبت کا اپنا بیان ہے کہ اس نے پہلا گیت اس وقت گایا جب وہ سوتے سوتے اچانک اٹھا۔ اس نے سوتے میں کسی کو گیت گاتے سنا، جاگ کر اس نے اپنی اس ترنم کی پیروی کرنی چاہیے، اس کا پہلا ترنم تھا۔ ابن سریج اور غریز کہتے ہیں کہ وہ ایک دن مدینہ کے ایک مغسلہ کے قریب تھے کہ انہوں نے ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا جو تہ باندھے تھا اور جس کے ہاتھ میں غلیل تھی اور گانا گا جا رہا تھا اور گاتا جا رہا تھا۔ اس کی آواز بڑی شیریں اور مؤثر تھی، دونوں کے دل اس کی طرف کھنچ گئے۔ انہوں نے اس لڑکے کو بلایا اور اس کو روک کر اس سے گانا سنا۔ دونوں کا بیان ہے کہ ایسا سریلا گانا انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ یہ دونوں خود بھی اپنے وقت کے بڑے گویے تھے اور انہوں نے محبت کو ایک گویے کی حیثیت سے پرکھا تھا۔ محبت کا اپنا بیان ہے کہ ایک بار ایک قریشی سے اسے اپنے ساتھ غریز کے پاس لائے اور غریز سے فرمائش کی کہ اس کا گانا سنے۔ اس نے وہاں کوئی 20 راگنیاں گائیں۔ غریز کا چہرہ حیرت، خجالت اور ندامت سے سفید پڑ گیا تھا۔ محبت خدائے موسیقی تھا اور وہ ہر روز نئی نئی راگنیاں ایجاد کرتا اور اپنے لحن داؤدی سے انہیں زندہ و جاوید بنا دیتا۔ محبت کی آواز میں جو جادو تھا اس کا مظاہرہ ایک دفعہ اس وقت ہوا جب محبت سفر میں تھا اور پیاس اور گرمی کے سبب اس کا برا حال تھا۔ اس کی نگاہ خیمہ پر پڑی جہاں ٹھنڈا پانی تو تھا مگر اس کے مالک نے اسے پناہ نہ دی۔ محبت اپنی زبان کے جادو سے خوب باخبر تھا۔ اس نے مایوسی کے عالم میں اپنی اونٹنی کے سائے میں پناہ لی اور سوکھے ہوئے حلق سے گانا شروع کیا۔
फिर क्या था कि साहिब खैमा ने ना सिर्फ उसे ठंडा पानी पिलाया बल्कि अपने यहाँ ठहराया भी। और जब वो चलने लगा तो एक नौजवान लड़का अपने सर पर पानी की सुराही लाद कर उसके साथ चला, इस शर्त पर कि मोहब्बत उसे गाकर सुनाएगा और वो उसे रास्ता भर पानी पिलाता रहेगा। ये लड़का मोहब्बत की ऊँटनी के साथ साथ उसकी आखिरी मंजिल तक गया। सर पर पानी की सुराही उठाए हुए उसने महज गाना सुनने के लिए इतनी लंबी मुसाफत तय की। साहिब लगानी का बयान है कि मोहब्बत बतने मर्ज से गुजर रहा था कि उसने रास्ते में किसी को गाते सुना। गाने की आवाज़ बेहद मुतासिर थी। वो खींचा खींचा इस तरफ आया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। मोहब्बत ने देखा कि एक खूबसूरत वजीह शख्स ज़ोफ़रानी रंग के कपड़े पहने हुए मीठी और सुरीली लय में बेखुद होकर गा रहा है। मोहब्बत वहीं रुक कर गाना सुनता रहा और जब गवैया गा चुका तो मोहब्बत ने खुश होकर खुद भी चंद शेर गाया और इस वजीह शख्स ने मोहब्बत को पहचान कर दाद दी, वल्लाह मोहब्बत, अगर हमें मालूम होता कि आप हमारा गाना सुन रहे हैं तो हम आपके सामने कभी गाने की जुर्रत न करते। ये इब्न सरीज था जो अपने वक्त का बहुत मुमताज़ मुगन्नी था। साहिब लगानी कहते हैं कि मोहब्बत ने जिन लौंडियों को गाना सिखाया था उनमें से एक बसरा के एक शख्स ने खरीद ली थी। बसरा के इस शख्स को लौंडी के गाने से वालिहाना इश्क था। वो काफ़ी दिन उसके पास रही, फिर मौत के दामन में जा सोई। उसकी वजह से ये शख्स मोहब्बत से गायबाना इश्क करने लगा था, क्योंकि वो हर वक्त मोहब्बत की तारीफ करती रहती थी। गो इस लौंडी ने कुछ और लौंडियों को भी गाना सिखा दिया था, मगर उनके गाने में वो बात न थी जो मरने वाली के गाने में थी। और ये शख्स हर लम्हा मोहब्बत और उसकी लौंडी को याद करता रहता। इस मोहब्बत और लगाव की खबर किसी ने मोहब्बत को दी। मोहब्बत उससे मिलने के लिए मदीना से बसरा आया। बसरा पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो शख्स अहवाज जा चुका है। इत्तफाक की बात, उस वक्त बसरा से अहवाज को जाने वाली सिर्फ एक कश्ती थी जिसमें अमीर आदमी और उसकी लौंडियां सवार थी। मोहब्बत ने बड़ी मिन्नत समाजत से उस कश्ती में जगह पाई। रास्ते में लौंडियां गाई, पहले एक गाई, फिर दूसरी और फिर तीसरी। अजीब बात थी कि तीनों लौंडियों ने वही धुनें गाई थी जो मोहब्बत की इजाद थी, मगर कम तालीम के सबब लौंडियां किसी धुन को ठीक तरह गा न सकी थी। इसलिए मोहब्बत को हर बार उन्हें टोकना पड़ा। मोहब्बत का लिबास मैला हो चुका था और सूरत से ये जाहिर न होता था कि ये कोई माकूल आदमी है। अमीर आदमी को इस बदवज़ा शख्स की मुदाखलत हर बार बुरी मालूम हुई और उसने उसे हर बार डांटा और आखिर बार तो धमकी दी कि अगर उसने फिर टोका तो वो उसे कश्ती से नीचे फेंक देंगे। ये धमकी नाकाबिल बर्दाश्त थी। मोहब्बत का हथियार उसके फ़न के सिवा कोई दूसरा न था। उसने उसी से काम लिया और पहली धुन गाई, गाने वालियां तड़प उठी। फिर दूसरी धुन गाई तो गाने वालियों के तासुर की कोई हद न रही और जब तीसरी धुन गाई तो वो शिद्दत तासुर के सबब हर सो ज़लज़ले के झटके लहराते महसूस करने लगी। और वो अमीर आदमी जिसने मोहब्बत की गुस्ताखी की थी उससे हजार हजार मिन्नत समाजत करने और माजरत चाहने लगा। और थोड़ी देर बाद जब मोहब्बत ने उनसे अपना तारुफ कराया तो वो सारा काफिला कभी उसके हाथ चूमता कभी पाँव। फिर राज खुला कि ये शख्स वही शख्स था जिसके बाद मोहब्बत की एक शागिर्द रहती थी और जो मोहब्बत का गायबाना परिस्तार था। उसने इस अजीब मुलाकात को अपने लिए नेमत गैर मुतरकबा समझा। 300 दिनार मोहब्बत की खिदमत में उसी वक्त नजर किए और अपने साथ आवाज ले गया और काफी दिन बड़े इज्जत और एहतराम के साथ अपने पास रखा। मोहब्बत को रस्मी तौर पर बनु उमैया का गवैया न था, वो मदीना का गवैया था और उसे इस बात पर फख्र था कि मदीना उसका घर है। लेकिन कभी कभी खुलफाए बनु उमैया उस बड़े गवैये को अपने पास बुला लेते और उससे गाना सुनते। साहिब लगानी का बयान है कि एक बार अचानक वलीद बिन यजीद का नामा पर तेज तेज घोड़ा दौड़ाता मदीना आया और मोहब्बत को खबर दी कि अमीरुल मोमिनीन याद कर रहे हैं। मोहब्बत इसके साथ सवार हुआ और दमिश्क पहुंचा। वलीद ने अपने महल में ज़ोफ़रान और मुश्क मिले हुए पानी से हौज़ भर रखा था। हौज़ के एक किनारे पर खुद बैठा था और सामने के किनारे पर मोहब्बत के लिए फर्श बिछा था। उसके सिवा वहाँ कोई दूसरा न था। वलीद ने मोहब्बत से गाने की फरमाइश की। वो जब गाया तो वलीद पर कुछ अजीब वजद तारी हुआ। वो कपड़े उतार कर हौज़ में कूदा, खूब खुद शराब पी और मोहब्बत को भी पिलाई। इस तरह उससे कई बार गाने की फरमाइश की और इस कदर महफूज हुआ कि 15,000 दिनार अशरफी उसे अता किए। मोहब्बत मदीना भर के मुगन्नियों का इमाम था। इब्ने आयशा जैसे बड़े मुगन्नी उसके शागिर्द थे। जब भी इब्ने आयशा मोहब्बत का जिक्र करता उसे मदीना के अहले फन मुगन्नियों का इमाम कहता। मोहब्बत का अपना बयान है कि एक बार उसका जी चाहा कि वो मक्का आए और वहाँ के मुगन्नियों इब्ने सरीज और उसके साथियों से मिले। उसने सवारी ली, उस पर बैठा और मक्का पहुंचा। वहाँ पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि मक्का के मुगन्नी किसी एक शख्स के यहाँ मुज्तमा होते हैं, वहाँ बैठ कर पीते हैं और गाते हैं। मोहब्बत उस शख्स के यहाँ पहुंचा और उससे दरखास्त की कि उसे अपना मेहमान बना ले। साहिब खाना मेहमान नवाज था। उसने उसे अपने यहाँ जगह दी और जब सारे गवैये वहाँ मुज्तमा हुए तो वो भी उनमें जा बैठा। गवैयों ने उसकी मौजूदगी को मकरूह जाना। साहिब खाना ने उसकी तारीफ की और उसे गाने का शौकीन जाहिर किया। बहरहाल मुगन्नी उसे एक तालिब इल्म समझकर अपने अपने कमालात का मुजाहिरा करने लगे। मोहब्बत कहता है कि मैं इनमें से एक एक के अंदाज को अच्छी तरह जहन नशीन करता गया और जब सब गा चुके तो मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मुझे भी इजाज़त दें। मैंने सबसे पहले इब्ने सरीज के अंदाज में गाना शुरू किया और उसके अंदाज में कुछ खूबी अपनी तरफ से भी पैदा की। वो सबके सब खूब महफूज हुए। फिर मैंने एक एक करके सबके अंदाज की नकल उतारी और हर अंदाज में अपनी तरफ से इस्लाह की। उनको बहुत ताज्जुब हुआ। फिर मैंने अपनी धुनें उन्हें सुनाई। वो तो शिद्दत तासुर से चीख उठे और
मुझसे पूछा कि यह साहिब फन तो कौन है। मैंने उनसे अपना तारुफ कराया। उन सब ने मेरी पेशानी बार बार चूमी और मुझे 1 महीना तक अपने यहाँ मेहमान रखा। मोहब्बत के इस बयान से मालूम होता है कि उस दौर के गवैये एक दूसरे से न नफरत करते थे और न हसद। वो एक दूसरे के सच्चे दोस्त और मद्दाह थे। शोरा की तरह एक दूसरे की हिजो और बदगोई में अपना वक्त ज़ाया न करते। मोहब्बत के कमालात का एतराफ़ उनमें से हर एक को था। हालांकि इब्न सरीज और इब्न आयशा, जमीला और गरीज मामूली असहाब फन न थे, बहुत ऊंचे गवैये थे, मगर उनमें कतन कोई रकाबत न थी। इब्न सरीज वो मक्का का बहुत बड़ा मुगन्नी था और पहली सदी हिजरी के गवैयों में बहुत मुमताज़ था। यहाँ हम उमर बिन रबिया के जिक्र में इस बड़े साहिब फन का कुछ जिक्र कर चुके हैं। वो यूं तो मोहब्बत की तरह आज़ाद करदा गुलाम था, लेकिन उसके फ़न और कमाल का छोटा बड़ा सब इतराफ़ करता। वो हाशिमियों का मौला था, मगर हाशिमी किया और गैर हाशिमी किया सब उसकी इज्जत करते थे। साहिब लगानी ने अभी मिस्कीन की रिवायत नकल की है कि इब्न सरीज ऐसा उन्नास गना था। इब्न सरीज को हज़रत उस्मान गनी के ज़माने में गाने का शर्फ हासिल हुआ। असल में इब्न सरीज तुर्किया का रहने वाला था। सुर्ख रंगत थी गालिबन, इसलिए लोग उसे सुरखा कहते थे। वो ज़ोफ़रानी रंग के कपड़े पहनता। वो मक्का का सबसे बड़ा साहिब फन गवैया था, लेकिन वो कतन बद्दिमाग न था। हर एक से बड़ी खद्दा पेशानी के साथ मिलता। खसूसन सादात का तो वो एक अदना खादिम था। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफिर रज़ियल्लाहु अन्हु जब तक जिंदा रहे वो इनसे मुताल्लिक रहा। उसने इब्न मसद से ये फ़न सीखा था, और जिस तरह मोहब्बत ने नई धुनें ईजाद की थी, इसी तरह इब्न सरीज भी बहुत सी धुनों का खालिक था। इसहाक का बयान है कि हिजाज में 4 असहाब फन मौसीकी के इमाम थे। उनमें से 2 मक्की थे और 2 मदनी। मक्की इब्न सरीज और इब्न महजर, और मदनी मोहब्बत और मालिक। इब्न सरीज के मुतालिक मक्का के बाद सुखन फहमों का ख्याल था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद इब्न सरीज जैसा कोई साहिब फन और अहसन सौतर पैदा नहीं हुआ। उसकी गना अपनी मिसाल आप थी। मोहब्बत जैसे साहिब फन ने जब इसकी गना सुनी तो उसी दिन से खुद को सरीजी कहने लगा। ये बात बहुत बड़ी थी। सियात का बयान है कि इब्न सरीज हिजाज का सबसे बड़ा मुगन्नी था। वो हज़रत उमर बिन खत्ताब के ज़माने खिलाफत में पैदा हुआ। शाम के ज़माने में इस दुनिया से रुखसत हुआ। कहते हैं कि वो पहले नूहा गाने में भी अपनी मिसाल आप था। जब हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया का इंतकाल हुआ तो वो सख्त बीमार था। हज़रत सकीना बिन्त हुसैन ने अपने गुलाम गरीज को हुक्म दिया कि तो नोहा तैयार करे। उसने जो नोहा तैयार किया उसे लोगों ने बेहद पसंद किया, और बाज़ ने उसकी हज़ीना धुन को अपने इब्न सरीज की हज़ीना धुन से बेहतर करार दिया। इब्न सरीज ने सेहत पाई तो लोगों से पूछा, हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया का नोहा किसने तैयार किया? लोगों ने गरीज का नाम लिया और ये भी खबर दी कि उसके नोहा को इब्न सरीज के नोहा पर तरजीह दी गई है। तो उसने कसम खाई कि फिर कभी किसी का नोहा नहीं गाएगा। मगर जब हबाबा इसकी शागिर्द खास इस दुनिया से रुखसत हुई तो इब्न सरीज का दिल मातम कदा बन गया और उससे बड़े ही अंदोनाक नोहे बुलंद हुए। साहिब लगानी फरमाते हैं कि इब्न सरीज और उमर बिन अबी रबिया एक रात एक साथ बैठे थे। इब्न सरीज गा रहा था कि खुश शक्ल वजी सवार उनके करीब आन रुका और इब्न सरीज से दरखास्त की, एक बार और गाए। इब्न सरीज गाया तो वो शक्ल शख्स चिल्लाया, वल्लाह तुम इब्न सरीज हो और तुम्हारे साथी इब्न अबी रबिया है। वो खुद यजीद बिन अब्दुल मलिक था। उसने इब्न सरीज के गाने से खुश होकर उसे अपनी अंगूठी और अपनी अबा दे दी और चलता बना। ये दोनों चीजें इब्न सरीज के किसी काम की न थी। उसने इन्हें उमर बिन अबी रबिया की झोली में डाल दिया। उमर ने 300 दिनार के एवज इब्न सरीज के सुपुर्द किए और उन्हें पहनकर मस्जिद में आया। लोग पहचान गए कि अंगूठी और बा किसकी हैं, मगर कोई नहीं जानता था कि ये दोनों चीज़ें यजीद बिन अब्दुल मलिक ने असल में किसे दी थी। साहिब लगानी ने इन दोनों के बारे में जो रिवायत बयान की है उनसे मालूम होता है कि ये दोनों एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त और रफीक थे। उनके राज मुश्तरक और खाना पीना इकट्ठा था। उमर बिन अबी रबिया शेर कहता और इब्न सरीज निशार को गाता। इब्न सरीज की आवाज़ इस कदर मुतरन्निम और गना में इतना सहर होता कि चलते काफिले रुक जाते। एक बार हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज और हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर तक इब्न सरीज के गाने को सुनकर मुतासिर हो गए। ये तासुर की इंतहा थी। इसहाक का बयान है कि इब्न सरीज 68 धुनों में गा सकता। जब उसका इंतकाल हुआ तो मोहब्बत बेख्तियार चीखा कि अब मैं इस काबिल हूँ कि लोग मुझे सबसे बेहतर गवैया कहें। इब्न सरीज जब तक जिंदा थे वही सबसे बड़े मुगन्नी थे। मोहब्बत को इब्न सरीज से बेहद अकीदत थी। वो इब्न सरीज से बड़ा साहिब फन था, लेकिन इब्न सरीज को वो उस्ताद कहता और खुद को सरीजी कहने में फख्र महसूस करता। साहिब लगानी कहते हैं कि एक बार मोहब्बत और मालिक दोनों ने 2 धुनें ईजाद की। दोनों में तकरार हुआ कि किसकी धुन दूसरे से बेहतर और अफजल है। मदीना में कोई ऐसा न था जो दोनों उस्तादों के झगड़ों को चुका सकता। वो दोनों इस झगड़े को चुकाने के लिए मक्का आए। इब्न सरीज को अपनी धुन सुनाई और फखरी अंदाज में उससे पूछा, क्यों, कैसी धुन है। उसने हर एक की तारीफ की, मगर जब मालिक ने ताली की कि हमने ये धुन सिर्फ 1 महीना में तैयार की है तो इब्न सरीज को बहुत बुरा मालूम हुआ और उसने मालिक को डांटा, तुम 1 महीना की धुन पर फख्र करते हो, हम अभी इसी लम्हा तुम्हें यही धुन सुनाएंगे मगर फख्र न करेंगे। और जब उसने धुन सुनाई तो मोहब्बत और मालिक दोनों के सरशरम और निदामत के मारे इस बड़े उस्ताद के सामने झुक
गो वो इतना बड़ा मुगन्नी था, उसकी आवाज़ में जादू था, लेकिन वो मगरूर न था। जो भी कोई उसके पास आता वो और उससे गाने की फरमाइश करता वो इनकार करता। एक बार कुछ नौजवान उसके पास आए, वो बीमार था और गाने के काबिल न था, मगर जब उन नौजवानों ने उससे कहा हम बड़ी उम्मीद लेकर आए थे और बहुत दूर से आए थे, तो उसने अपना ओद मंगवाया और इस तरह गाया जैसे वो मरीज न था। नौजवानों के तासुर का ये आलम था कि वो कुछ ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे उन्होंने लज्जत की एक नई दुनिया से तारुफ हासिल किया है। ये लोग मदीना भी आए और वहाँ मोहब्बत और मालिक का गाना भी सुना, लेकिन जो लुत्फ इब्न सरीज का गाना सुनकर उन्हें मिला था वो कहीं ना मिला। उन्होंने ये बात मदीना वालों से कही थी। एक बार वलीद बिन अब्दुल मलिक ने इब्न सरीज की शोहरत सुनकर उसे अपने हाथ तलब किया और उसका गाना सुना। उसने उसे एक नहीं कई कसीदे और गज़लें सुनाई। वलीद का आलम यह था कि उसकी जुबान इब्न सरीज की तारीफ करते थक गई थी, मगर हक अदा न कर सका। उसने इब्न सरीज से कहा वल्लाह इब्न सरीज, तुम्हें खुदा ने बहुत बड़ा शर्फ अता किया है। यकीनन ये बड़ा शर्फ था, ऐसा शर्फ जो बादशाहों के सर उसके सामने झुका था। मक्का के इब्न महरज मक्का के एक और बड़े मुगन्नी इब्न महरज ने भी इस दौर में बड़ी शोहरत और नामवरी पाई। उसे मौसीकी से बड़ा शगुफ था, जहाँ कहीं बड़े मुगन्नियों का नाम सुनता वहाँ जा पहुँचता और नई धुनों से वाकफियत हासिल करता। उसने 3 महीने मदीना में काटे, 3 महीने मक्का में। कभी फारस जाता और वहाँ के मुगन्नियों से उनकी धुनें सीखता। मदीना में जितनी मुद्दत वो रहा, उज़्ज़तुल मैला की शागिर्दी की। उसने शाम का सफ़र भी किया और रोम का भी। रोम के मौसीकारों से भी उनकी मौसीकी सीखी। वो पहला अरब मुगन्नी है जो अरबी, फारसी और रोमी दोनों से आगाह था और उनमें महारत रखता। उसने अरबी, फारसी और रोमी धुनों में इस्लाह भी की और कई मिली जुली धुनें भी ईजाद की। इस लिहाज से इब्न महरज पहला अरब मुगन्नी है जिसने इस वस्फ में इम्तियाज़ पाया। रमन मौसीकी की एक सनद है। साहिब लगानी का बयान है कि इब्न महरज इस सनद का मौजूद है। इससे पहले किसी फारसी या गैर फारसी मुगन्नी ने इस सनद में कमाल न पाया था, हत्ता कि कोई इससे आशना भी न था। साहिब लगानी ने इसहाक की रिवायत नकल की है कि उसके नज़दीक इब्न सरीज के बाद इब्न महरज का दर्जा था। मोहब्बत गरीज और मालिक दूसरे दर्जे के मुगन्नी थे, मगर पहले मुगन्नियों की तरह इब्न महरज ने अपनी ज़िंदगी में शोहरत न पाई। उसका सबब यह था कि उस पर जज़ाम ने हमला किया था। जज़ाम की वजह से वो बहुत कम बाहर निकलता, न लोगों से मिलता, न बादशाहों तक जाता और न आम मजमाओं में शिरकत करता। उसके एक दोस्त की एक लौंडी थी जिसकी झोली उसने अपने इल्म और फन से भर दी। यही लौंडी उसके कमालात की वारिस थी और उसी से उसकी धुनें लोगों तक पहुंची। गरीज पहला शख्स है जिसने इब्न सरीज जैसे बड़े मुगन्नी से मुकाबला शुरू किया। ये वही है जिसने हज़रत सकीना बिन्त हुसैन की फरमाइश पर इमाम मोहम्मद बिन हनफिया का नूहा मुरतब किया और इस तरह इब्न सरीज का मुकाबला भी करने की जरूरत की, वरना मोहब्बत जैसा बड़ा मुगन्नी इब्न सरीज का लोहा मानता। हकीकत यह है कि गरीज ने जो कुछ सीखा इब्न सरीज से सीखा। वो इसका शागिर्द था, लेकिन बहुत ज़हीन, तब्बा और तेज़ आदमी था, इसलिए इब्न सरीज के कमालात बहुत जल्द अखज़ कर लिए और शायद ज़र्फ छोटा था कि उस्ताद का मुकाबला शुरू कर दिया। इब्न सरीज जो धुनें ईजाद करता वो भी वैसी ही धुनें गाने लगता और लोग उसकी खूबसूरती, वजाहत और मिलनसारी और कम उम्री के सबब उसकी तरफ माइल हो जाते। वो चूँकि हज़रत सकीना बिन्त हुसैन और उन जैसी दूसरी ख़वातीन के मुँह लगा था, इसीलिए उसे बड़ी महफिलों में जाने के मौके थे और इब्न सरीज बूढ़ा हो रहा था। उसको गरीज के तरीक़ेकार पर गुस्सा भी आता और रंज भी होता। उसने गरीज का मुंह लगाना छोड़ दिया। अब गरीज को मालूम हुआ कि उस्ताद से मुकाबला किस दर्जा नुकसान देता। वो यकीनन ज़हीन था, यकीनन तिबा था, लेकिन जहानत और तिबाई और चीज़ है और गाने में महारत दूसरी चीज़। उस्ताद ने धुतकारा तो वो हर लम्हा परेशान रहने लगा, यहाँ तक कि मदीना की 2 लौंडियों ने जो इब्न सरीज की शागिर्द खास थी उसके आंसू पूछे और तसल्ली दी कि वो इब्न सरीज से जो कुछ सीखेंगी उसे सिखा देंगी। सचमुच उन्होंने गरीज पर बहुत करम किया। इब्न सरीज की सारी धुनें और सारा इल्म गरीज तक पहुंचा दिया। यही वजह थी कि गरीज का अपना फन कोई न था। वो इब्न सरीज का एक मुकम्मल नमूना था। हज़रत सकीना बिन्त हुसैन इन दोनों को सुनकर कहा करती कि एक याकूत है और दूसरा लोलू। हज़रत सकीना को इसलिए कहना पड़ा कि एक असल था और दूसरा नकल। गरीज की इस दौर में उसके हुस्न और रानाई और वजाहत के सबब बड़ी कदर हुई। लुत्फ तो यह था कि वो उस्ताद से बढ़ जाता। जहानत तो ये थी कि जिस तरह इब्न सरीज ने अपने उस्ताद से थोड़ा सीखा मगर उसमें बहुत से इजाफे किए, उसी तरह गरीज भी उस्ताद से सीख कर इसी फन में नए इजाफे करता। मगर वो महज नक्काल था। अलबत्ता ये सही है कि नकल मुताबिक असल जरूर था। नक्काली भी एक फन है। इस एतबार से गरीज एक बड़ा फनकार कहा जा सकता है कि उसने अपने उस्ताद से जो कुछ सीखा था उसे खूब याद रखा था। उस्ताद को छुपाते तो उसे जाहिर करते। अगर उनमें से एक छुप कर गाता तो बहुत कम लोग पहचान सकते कि असल कौन है और नकल कौन। ये इब्न सरीज गा रहे हैं या गरीज। एक बार जब दोनों लड़ पड़े तो हज़रत सकीना बिन्त हुसैन के पास आए और दोनों ने अपनी नई धुन सुनाई और दावा किया कि दोनों खालिक हैं। सकीना जानती थी कि खालिक कौन है, मगर वो दोनों को एक जैसा पसंद करती थी। बोली, क्या करूं, तुम दोनों की मिसाल तो ऐसी है जैसे याकीत और लोलू 2 एक जैसी खूबसूरत छोकरियों के गलों में पड़े हों।
गरीजा का सितारा इकबाल उस वक्त तो खूब चमका जब इब्न सरीज इस दुनिया से चलता बना और सिर्फ वही अकेला मक्का का बड़ा मौसीकार शुमार होने लगा। उसने उम्मी दरबारों में भी रसूख पाया और खवास अवाम की महफिलों में भी इज्जत पाई। वो जब तक जिंदा रहा मक्का का सबसे बड़ा मुगन्नी समझा जाता रहा। मौत के बाद भी लोगों ने इब्न सरीज के बाद उसे मोहब्बत के पहलू में जगह दी। इब्न आयशा, मदीना के मुगन्नियों में इब्न आयशा ने भी बड़ी शोहरत पाई है। इसहाक और दूसरे फनकारों का ख्याल है कि इब्न आयशा का आगाज बहुत अच्छा होता था। अगर इंतहा भी वैसी ही होती जैसे आगाज होता तो वो इब्न सरीज का मुकाबला कर सकता। उसकी आवाज बहुत अच्छी थी मगर उसकी उंगलियां बहुत बड़ी फनकार न थी। वो औद कुछ गैर मामूली अच्छा न बजा सकता। यही वजह थी कि वो इब्न सरीज मोहब्बत और गरीज के बाद दूसरे दर्जे के मुगन्नियों में शुमार हुआ है। उसमें कोई शुबा नहीं कि वलीद बिन यजीद जैसे खुलफाए बनु उमय्या ने इब्न आयशा को उस वक्त मोहब्बत और गरीज के दर्जा में रखा जबकि अभी वो बहुत कम उम्र था। इसलिए नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा फनकार था बल्कि इसलिए कि उसकी आवाज में जो सोच था, इससे वलीद बिन यजीद को दिली सुकून मिलता। हजरत हसन के बेटे हसन इब्न आयशा को बहुत पसंद करते थे और जहां कहीं जाते उसे साथ ले जाने की कोशिश करते। अगर कभी इब्न आयशा साथ ना जाना चाहता तो वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते। इब्न आयशा को उनका एहतराम बेहद मलहूस होता। इब्न आयशा भी बहुत खूबसूरत और वजीह शख्स था। वो फयाज भी था। एक दफा वो वलीद बिन यजीद के दरबार से 30,000 दिरहम और बेशुमार मलबूसात इनाम में पाकर घर लौट रहा था कि एक अजनबी उसे राह में मिला। ये अजनबी बड़ा सुखन फहम और साहिब ज़ौक़ था। उसने इब्न आयशा से तारुफ के बाद उससे दरखास्त की कि मुझे भी वही गाना सुनाइए जिससे आपको वलीद ने ये इनाम बख्शा। दरखास्त हद से बड़ी हुई थी लेकिन इब्न आयशा ने उसका दिल तोड़ना न चाहा। माजरत की ये रास्ता है और मैं सफर में हूँ, घर पहुंच जाऊं तो फिर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। घर आया और उससे इल्तिजा की तो 200 दिनार और 10 उम्र जोड़े ले लो और खुदा के लिए मुझे गाना सुनाने से माजूर रखो। उस शख्स ने जवाब दिया, गो मैं बेहद मुफलिस हूँ, मेरी बीवी के जिस्म पर चीसड़े हैं और मेरी बेटी के पास सोने का एक छला नहीं है, मगर इसके बावजूद अगर आप मुझे इस दौलत से दुगनी दौलत भी दें जो अमीर अल मोमिनीन के दरबार से आपको मिली है तो भी मैं आपके गाने पर इस दौलत को तरजीह न दूंगा। ये बड़ी अजीब बात थी। इब्न आयशा को यह शख्स बड़ा भला मालूम हुआ और उसने उसे वही गीत सुना दिए जो वलीद बिन यजीद को सुनाए थे और इनाम पाया था। ये दिलचस्प खबर जब वलीद को हुई तो उसने इस शख्स को तलब किया और अपना मुसाहिब बना लिया और जब तक वो जिंदा रहा उसे अपने करीब रखा। इब्न आयशा चूंकि बड़ा साहिब फन था और लोग उसकी बड़ी कदर करते, इसलिए वो अमूमन आम लोगों की फरमाइशें पूरी नहीं करता था। लोग जब उसका गाना सुनना चाहते तो उसे अपने यहाँ मदू करते और मुख्तलिफ शोरा के इशार पढ़ने लगते। इस तरह इब्न आयशा को इश्तियाल होता और वो आप ही अपनी पसंद के इशार गाने लगता। साहिब लगानी ने उसकी एक मिसाल लिखी है कि एक बार इब्न आयशा हज के लिए मक्का आया। बनु हाशिम के बाद मुअज़्ज़िज़ नौजवानों ने उसे अपने यहाँ मदू किया और जब वो आया तो उसे मसनद सदारत पेश की और बड़े एहतराम से पेश आया। खाना हाजिर किया। खाने के बाद शेरबाजी शुरू हुई और फिर जमील शायर का एक अजीब व गरीब किस्सा सुनाया। इस किस्से की याद में जमील शायर ने एक पूरा कसीदा लिखा था। जब नौजवानों ने इस कसीदा का जिक्र किया तो इब्न आयशा को इश्तियाल हुआ और उसने वो कसीदा गाना शुरू किया। वलीद को इब्न आयशा से एक गुना इश्क था। वो अमूमन उसे मदीना से बड़ी शान और शौकत के साथ शाम बुलाता, उसको अपने यहाँ रखता और गाना सुनता और जब लौटाता तो उसे माला माल करके लौटाता। बेचारा इब्न आयशा जब आखिरी बार वलीद के पास से आया तो उसके साथ बेहद दौलत थी। कसर जी खशब के करीब पहुंचा था कि मदीना के वाली इब्राहिम बिन हशाम ने उसे अपने यहाँ ठहरा लिया। रात को खूब शराब पिलाई और गाना सुना। कहते हैं कि उसके खादिमों ने उसे छत के ऊपर से लुढ़का दिया। ये भी कहा जाता है कि वो पेशाब करने के लिए उठा के छत से नीचे गिर पड़ा। मालिक उम्मी दौर का आखिरी बड़ा गवैया है। साहिब लगानी का बयान है कि उसकी मां कुरैश के खानदान बनु मखजूम में से थी। बाप बनु सौल का फर्द था। कहत ने उनके इलाके में तबाही मचाई तो पूरा खानदान मदीना आन पहुंचा। एक रिवायत के मुताबिक जनाब अब्दुल्ला बिन जाफिर ने उसके खानदान को पनाह दी। मालिक को बचपन ही में गाने से बेहद लगाव था। जनाब हमजा बिन अब्दुल्ला बिन जुबैर के यहाँ मोहब्बत मशहूर मुगन्नी अमूमन गाया करता। मोहब्बत एक तरह से जनाब हमजा के मुताल्लिकीन में से था। जब भी मोहब्बत उनके यहाँ पहुंच कर गाता मालिक हमजा के दरवाजे से लग जाता और मोहब्बत का गाना सुनता रहता। एक दिन जनाब हमजा ने उसे दरवाजे से लगा देख लिया, अंदर बुलाया और हालात पूछे। मालिक ने अपने शौक का आलम बयान किया। उन्होंने मोहब्बत को बुलाकर उसकी शौक का इम्तिहान लिया और जब वो शौक में पूरा उतरा और मोहब्बत की धुनों को दोहरा दिया तो हमजा ने उसका वजीफा मुकर्रर कर दिया। उसकी माँ और भाइयों के रहने के लिए मकान मुहैया किया, पहनने को कपड़े दिए और खाने को अनाज। मोहब्बत ने इस ज़हीन बच्चे पर बेहद तवज्जो की और उसे थोड़ी ही मुद्दत में इस काबिल कर दिया कि वह नई धुनें ईजाद कर सके। एक बार उसने किसी औरत को नोहा गाते हुए सुना। घर आनकर उसने इस नोहा में 2 नई धुनें ईजाद की। एक धुन मोहब्बत से मिलती जुलती थी, दूसरी उस औरत के नोहा से मुशाबह थी। ये दोनों धुनें मालिक ने जब जनाब हमजा को सुनाई वो इस कदर खुश हुए कि उसे 200 दिनार की कीमत का एक हल्ला अता किया। मोहब्बत जब आया तो हमजा ने मालिक से कहा कि उस्ताद को वो धुन सुनाओ। मालिक ने वो धुन मोहब्बत को सुनाई। मोहब्बत को ये धुन पसंद ना आई और कराहत जाहिर की। हमजा ने उसे खुश करने के लिए उसे भी कीमती हल्ला पहनाया और मालिक ने मोहब्बत की पेशानी चूम कर अहद किया कि
वो आइंदा ऐसी कोई धुन नहीं गाएगा जो उस्ताद उसे न सिखाए। मोहब्बत खुश हो गया और उसके दिल की कदूरत धुल गई। मालिक ने इस अहद को हमेशा निभाया। गो उसने आगे चलकर बड़ा उरूज पाया। वो अपने वक्त का मकबूल तरीन गवैया समझा जाता, मगर उसने कोई नई धुन ईजाद न की। मोहब्बत के काये हुए नगमे और धुनों में कई इजाफे किए, कई तरमीमें की, और जब भी लोगों ने दाद दी उसने उनसे कहा कि ये मेरे उस्ताद मोहब्बत की धुन है, मैंने इसमें महज थोड़ा सा इजाफा किया है या कहीं कहीं कम कर दिया है। एक दफा यही बात उसने वलीद बिन यजीद से भी कही। हालांकि यजीद उसका बहुत मद्दाह था। अगर मालिक चाहता तो सारी तारीफ अपनी झोली में भर लेता। मालिक की यही खसूसियत उसे तमाम असहाब फन में मुमताज करती है कि उसने एक बार अपने उस्ताद से जो अहद किया था उसे जिंदगी भर निभाया। एक को कहता फिरा कि भाई हम ना खालिक है ना सन्ना, हम तो महज दूसरों की गाई हुई धुनों में इस्लाह करते हैं और उसे बेहतर ढंग में पेश करते हैं। ये हमारा कमाल और यही हमारा फन है। मालिक उम्मी दौर का आखिरी गवैया है। ये वही गवैया है जिसने उम्मियों के साथ साथ अब्बासियों को भी देखा। उसने उम्मियों से भी खलतें वसूल की और बनु अब्बास से भी।